So good afternoon, ladies and gentlemen. The full commission is now present before you to announce the schedule and phases and dates of the Bihar to the Legislative Assembly. I have my colleague Mr. A.K. Jyoti, Election Commissioner. I have another colleague Mr. O.P. Rawat, Election Commissioner. So the full commission is present before. On behalf of the Election Commission of India, it's my pleasure to announce the schedule of phases and dates of election to Bihar Legislative Assembly, the term of which you are already aware expires on 29th November 2015. By the time this press conference is over, a detailed press note will be circulated to you, which will give basic information and certain other details. I will, for the sake of convenience, capture highlights of the press note and other features pertaining to Bihar Legislative Assembly. Friends, the Commission has devoted several months of preparation for this Bihar election, starting with the special summary revision of electoral roll and poll related activities. At this juncture, the election is starting with the special summary revision of electoral roll and poll related activities. At this juncture, the Commission is satisfied that necessary arrangements for delivery of free, fair and peaceful elections have been put in place in Bihar state. I would briefly share some facts pertaining to Legislative Assembly Bihar elections. There are 243 assembly constituencies, out of which 38 are scheduled caste constituencies and 2 are scheduled tribe constituencies. The total number of electorate in Bihar state is 6.68 crores. The process of continuous updation, that is fresh addition, continues, and all voters are being advised to check their names in the voter list, and if their names are not there, in spite of the best efforts, they can still undertake the process of addition to our electoral rolls. In order to ensure electoral integrity during all steps of election cycle, the Commission attaches great importance to impartiality, neutrality and fairness of entire election machinery in their action as well as perception as far as stakeholders are concerned. And therefore the Commission urges everybody to cooperate and work according to law and instructions of the Commission. Any deviation from established framework will be viewed very seriously by the Commission. Friends, the Commission is committed to ensure conducive and peaceful environment from law and order and security points of view in the state for delivery of free and fair elections. The Commission will undertake all steps to ensure communal harmony and peace during all festival falling during MCC period. Some of the important festivals include Dasara, Navratras, Eid-ul-Zuha, Muharram, Diwali and Chhath, besides a long list of other festivals. The Commission has mounted special vigilance and formulated strategies in sensitive regions of the state from security point of view, so that voters are able to participate in the elections freely. For your information, out of 243 assembly constituencies, 47 assembly constituencies are affected by left-wing extremism, and 29 districts out of 38 districts are covered under this left-wing extremism. The Commission has made more than adequate arrangement of central paramilitary forces. The central paramilitary forces will man all polling stations. The major focus of the Commission will be on confidence building measures in areas which are very sensitive from security point of view, and the Commission will ensure that
there is area domination well in time by central police forces. There would be cordon and search operations in those areas. There would be effective intelligence gathering. There would be effective demining operations, including effective use of helicopters and including effective use of motor boats in river areas to mount surveillance. There would be adequate mounted police, Ghursavar police in Diara areas, and large deployment of motorbikes which will be used by police personnel in difficult areas. The Commission is committed to ensure that voters from weaker section of the society are able to cast their votes without fear, intimidation or threat from antisocial elements. In this regard, the Election Commission has ensured assessment of all vulnerable points where antisocial elements have been identified, who can or who are likely to threaten and intimidate voters. I would also like to share that while all polling booths will be manned by central paramilitary forces, final deployment of central police forces will be made after approval of observers, including at the level of the Election Commission of India, so that central para forces, police forces are effectively utilized. The Commission has already ordered that election machinery undertakes effective preventive measures against antisocial elements by means of checking vehicles on roads, undertaking action under various laws such as CRPC, IPC, and also taking actions against illicit arms, illicit liquor, and all other related action. The Commission has also constituted committees under district magistrates to assess the deposition of arms. In past elections, the deposition of arms by licensees has been at a very low level. This time, Commission is ensuring that maximum number of arms are deposited from licensees by this committee, which will undertake the assessment. The Commission has also rolled out a very effective and strengthened strategy to check misuse of money to influence voters, including the menace of paid news. As a part of our strategy, we have identified several sensitive constituencies, pockets within those constituencies, persons who act as conduit of liquor, cash, and surveillance on these elements will start immediately. Adequate number of flying squads with police forces, static surveillance teams, and video teams have also been pressed into service. For your information, more than 9 central and state agencies have been pressed into action to keep a check and surveillance on movement of cash, gift, and liquor through various means like roads, airports, and other borders, including international border. Our machinery is also gathering information about places where money and liquor are generally stored from before, and these points will be subjected to effective legal action by our machinery. Friends, the Commission is also committed that our systematic voter education program is launched effectively, and a special component of our voter education program will be ethical voting. The Election Commission of India will focus on sweep so that all past percentages of polling are surpassed. At the same time, when we are launching our action to prevent misuse of money, the Commission will ensure that the common man is not harassed by field level machinery, and therefore the Commission would like to publicize with masses about the limit of cash which they can carry, the number of documents which they are supposed to carry. The Commission has also set up a detailed mechanism at district level for speedy disposal of cases
where cash is seized so that it is released within 24 hours if it is found to be genuine. Another important feature of this election would be that from today only the single window system will be made effective and operationalized so that all stakeholders, political parties, candidates are able to get their permissions with regard to meetings, helicopters, loudspeakers and vehicles from this mechanism within a given time of 36 hours. This is very important so that our stakeholders are able to utilize the limited campaign period in the most effective manner. For your information, in this election, our electronic voting machines will be carrying the photos of the candidates also. This has been started to prevent the namesake problem. You might be aware of that namesake problem, and by placing photos, the voters will be able to identify their candidates better. The election in Bihar would also be the first where VVPAT, voters verifiable paper audit trail machine will be utilized in 36 constituencies, and this will cover 34 districts out of 38 districts. This scaling up is being resorted to following the order of the Honorable Supreme Court, where they have said that the Election Commission will increase the use of VVPAT in phases. In order to provide facilitation to all voters, basic minimum facilities such as ramps. Interestingly, we have ordered the state machinery to set up permanent ramps for our disabled voters, and they have done a very good job. Things like drinking water, shade, toilets, etc. have been provided, and this has been done in a very effective manner. The rest will be monitored over MCC period. 2 model polling stations to provide a very pleasant experience to voters per assembly constituencies. 2 model polling stations per assembly constituencies will also be set up. We will also issue photo voter slips to our voters minimum 5 days before the date of poll. This is a kind of invitation, and this is also a method by which our voters face convenience. They have certain facilities. The Commission would also be deploying 243 general observers and 38 police observers and 80 expenditure observers to oversee the election process as the eyes and ears of the Election Commission. As per the law, the exit poll will be prohibited from the first day of poll of the first phase till the half an hour later than the appointed time of last poll day. This applies to both print and TV media. Opinion poll under relevant law is prohibited in last 48 hours for electronic media. Similarly, advertisements are also prohibited in last 48 hours for electronic medium. Friends, the Commission is committed to conduct totally free, fair and peaceful election. It will be our endeavor to have a more participative, festive and voter-friendly elections, and therefore there will be efforts to ensure that the upcoming election is inclusive election. Friends, the Model Code of Conduct will be enforced with immediate effect. Necessary instructions are being issued to the state government, including the central government, for matters relating to Bihar. The Election Commission will ensure a level playing field to all political parties and all candidates. The Commission
will follow a policy of zero tolerance and will take appropriate action if any member of our election machinery is found prejudiced, biased in the enforcement of Model Code of Conduct. As you know already, the Model Code of Conduct oversee that the government resources are not misused to improve the prospect of any political party. On behalf of the Commission, I also appeal to political parties and all other stakeholders to cooperate the Election Commission in compliance of Model Code of Conduct so that we have fair, free and peaceful elections. And to our voters, the Election Commission also appeal to our voters to desist from any allurement in terms of cash, in terms of liquor, gifts, so that our elections are completed and delivered with integrity. And I also urge on behalf of the Commission to all voters to come out and participate in the upcoming election and strengthen the democracy of our country. Now I'm sure you are all waiting for the okay. So I would like to take you to the upcoming Bihar election will be conducted in 5 phases, and 5 phases election. The first phase of election, the date of notification, I will go slowly so that you can use. The phase 1, for phase 1 election in Bihar, the date of notification will be 16th September 2015. That is Wednesday. 16th September? Yes. Last date of making nomination in first phase will be 23rd September 2015. That is Wednesday. Making nomination. Date of scrutiny for first phase will be 24th September 2015. That is Thursday. Last date of withdrawal for phase 1 will be 26th September 2015, which is Saturday. And date of poll would be 12th October 2015, that is Monday. Date of counting I will tell at the end. Let me first complete all phases so that you. In this election phase. Pardon me? Election date. The first one is election. 12th October. 12th October. Let me, I will come systematically, don't worry. So now we go to phase 2. The date of notification for phase 2 would be 21st September 2015, which is Monday. The last date of making nomination for phase 2 will be 28th September 2015, which is again Monday. Date of scrutiny for phase 2 will be 29th September 2015. Last date of withdrawal for phase 2 will be 1st October 2015. And date of poll would be 16th October 2015, which is Friday. Now I go to phase 3. The date of notification is 1st October 2015, Thursday. Last date of making nomination for phase 3, 8th October 2015, which is Thursday. Date of scrutiny, 9th October, which is Friday. Last date of withdrawal, 12th October for phase 3, which is Monday. And date of poll would be 28th October, which is Wednesday. Now we go to phase 4. The date of notification is 7th October, Wednesday. Last date of making nomination is 14th October for phase 4.
Date of scrutiny is 15th October, which is Thursday, for phase 4. Last date of withdrawal for phase 4 is 17th October, and date of poll is 1st November 2015, which is Sunday. May I go to now phase 5? Pardon me? Phase 5. Phase 5, the date of notification is 8th October, Thursday. Last date of making nomination is 15th October, Thursday. Date of scrutiny 17th October, which is Saturday. Last date of withdrawal is 19th October, which is Monday, and date of poll is 5th November, which is Thursday. 5th November. Huh? I'm coming. And the date of counting for all phases together, as you know, would be 8th November, which is Sunday. And the date before which the election shall be completed is 12th November. Somebody asked about the number of districts. I will give you the broad numbers. Name would be too long a list. Huh? So in the first phase would be 49 assembly constituencies. I can only count districts, which is easier. In phase 1, 49 assembly constituencies. The district included are Samastipur, Begusarai, Khagaria, Bhagalpur, Banka, Munger, Lakhisarai, Sheikhpura, Nawada, and Jamui. This is first phase. And there are assembly constituencies which you can read from the press note. The list of, there are 32 assembly constituencies in phase 2. 32 in phase 2, and the districts are Kaimur, within bracket Bhabua. Second district is Rohtas, Arwal, Jahanabad, Aurangabad, and Gaya. Phase 3 includes 50 assembly constituencies, and the names of districts are 50 assembly constituencies in phase 3. The names of districts are Saran, Vaishali, Nalanda, Patna, Bhojpur, and Buxar. Phase 4 has 55 assembly constituencies, and the districts are Paschim Champaran, Purvi Champaran, Sheohar, Sitamarhi, Muzaffarpur, Gopalganj, and Siwan. And the last phase 5 has 57 constituencies. And the names of districts are Madhubani, Supaul, Araria, Kishanganj, Purnia, Katihar, Madhepura, Saharsa, and Darbhanga. This is all from our side. How many companies of paramilitary forces will be deployed? Generally, we do not share the numbers of paramilitary forces or Central Armed Police Forces. Now it is Central Armed Police Forces. But I can only say that we have received more than adequate police forces, and that is why I mentioned
that the commission has ensured that each and every polling booth station will be manned by central police forces. एक by-election notice. नहीं, if there were a by-election notice, I would have briefed you. Normally, Bihar elections, the perception among the common man is Bihar election is tough. Is it the same stand now? Is it a little eased out? Because last time there were 6 phases, now 5. Does it indicate the Bihar elections is now? No, actually, the election commission always take every election as a challenge. Some more, some less. Therefore, we have not reduced the degree. The commission remain committed to ensure fair and free elections. You said more or less Bihar is coming. No, I said every election is full of challenges. Some more, some less. सर ये पहली बार जो ईवीएम में वोटिंग कैंडिडेट्स का फोटो लगाया जा रहा है, आपको लगता है इससे ये इसके पीछे मूल भावना क्या है? देखिए, पिछले चुनावों में कुछ ऐसा सामने आया था कि एक ही नाम के कई कैंडिडेट्स खड़े हो गए और उसको लेकर वोटर्स के मन में भ्रांति हुई और उसको लेकर के काफ़ी वोटों को इधर उधर होना पड़ा। ऐसा फीडबैक हमें बहुत सारा मिला था पिछले इलेक्शंस में और उसको दूर करने के लिए ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गया था और हम लोगों ने उसके बारे में ये निर्णय किया कि कम से कम वोटर अपने कैंडिडेट को पहचाने, इसलिए उसका वोटर के सामने उसके कैंडिडेट का फोटो रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वोटिंग मशीन में फोटो लगाने का निर्णय किया है। एक सवाल इसका फॉलोअप क्वेश्चन रहता है, वो ये कि आपने तीसरे और चौथे फेज में 12 दिन का गैप दिया शायद दशहरे की वजह से, लेकिन दिवाली से पहले इलेक्शन पूरा कराने की क्या कोई खास वजह थी? क्योंकि 29 तारीख तक का वक्त था कमीशन के पास। कमीशन अपने शेड्यूल को और अपने फेजेस को और अपनी तिथियों को एक असेसमेंट के आधार पर तय करते हैं और ऐसा कहीं निश्चित भी नहीं है कि कितने समय पूर्व चुनाव को पूरा कर लिया जाए, सिवाय इसके कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले भी चुनाव किया जा सकता है। सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर आप बार-बार अपील भी करते हैं, आप लोग ठुकराते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद असर कम दिखता है हर चुनाव में। क्या इस बार कुछ सख्ती अलग से होगी, क्या किया जाएगा? देखिए, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का असर कम होता है। हर चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शन कमीशन अपने असेसमेंट में सबसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके अच्छे परिणाम भी रहे हैं और हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स और लीडर्स का सहयोग भी मिलता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बहुत इफ़ेक्टिव डेटरेंट एक्शन भी होता है और हमारा कमीशन आश्वस्त है कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सही स्पिरिट में लागू बिहार के इलेक्शन में भी करेंगे और सबसे हम अपील भी कर रहे हैं और कानून का अनुपालन भी कराने का स्टेप लेंगे। सर 2005 का जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में टफेस्ट माना जाता, उसमें 3 फेज चुनाव की घोषणा आप लोगों ने की थी, उसके बाद शायद 1 फेज एक्सटेंड हुआ। तो क्या तब से अब तक 2005 से 2015 में आप लोगों की चुनौतियां बढ़ गई हैं कि अभी भी बिहार में 5 फेज इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ गई? देखिए, जैसा बताया गया आपको शुरू में कि बिहार में शांति व्यवस्था, सुरक्षा और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ध्यान में रखते हुए चैलेंजेस हैं, जैसा अभी सज्जन बोल रहे थे। कमीशन के असेसमेंट में ये आवश्यक है कि हम पांच चरणों में चुनाव और चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि इस बार जिसकी सरकार होगी उसी की दिवाली होगी, क्योंकि दिवाली से पहले चुनाव परिणाम आ चुके होंगे। पिछली बार दिवाली के बाद तक भी वोटिंग हुई है और उसके बाद सरकार बनी, लेकिन इस बार दीपावली से पहले 8 तारीख को ही काउंटिंग भी हो चुकी होगी, यानी तय कि बिहार में किसकी सरकार होगी। और बहुत खास बात है कि इस बार निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर भी है, मोटर बोट भी है, घुड़सवार भी है, मोटर बाइक भी है। जिन 5 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो अलग अलग क्षेत्रों पर निर्धारित किया गया है। इसमें पहले फेज में 49 सीटों पर है, दूसरे फेज में 32 सीटों पर, तीसरे फेज में 50 सीटों पर, चौथे फेज में 55 सीटों पर और 5वें फेज में 57 सीटों पर है। 16 तारीख से
16 तारीख से नहीं, 12 तारीख से 12 अक्टूबर से पहला फेज शुरू होगा और जो कि 5 नवंबर को खत्म होगा। लेकिन नोटिफिकेशन जो है वह इसी महीने की 16 तारीख को पहला नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा पहले फेज के लिए, और उसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से नोटिफिकेशन। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। चूंकि ये चुनाव जो है किसी भी हालत में त्योहार को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, उसमें कोई खलल ना पड़े इसका खास ध्यान रखा गया और इसका जिक्र चुनाव आयोग ने भी किया है। तो उस दृष्टि से इस पूरे चुनाव की खासियत सिर्फ इतनी है कि बिहार का जो सबसे बड़ा त्यौहार छठ होता है, उस छठ से ठीक पहले। आइए केसी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। बिहार चुनाव का आज बिगुल बज चुका है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावों की तारीख तय है, क्या आपकी तैयारियां किस तरीके से हैं? बीजेपी भी अपनी कह रही है कि उनकी पूरी तैयारियां और वो चुनाव जीतने वाले हैं। अब इस लम्हे का हमें कई दिन से इंतजार था और बहुत रोचक मुकाबला होगा। 10 साल तक बिहार के विकास के लिए जो सपने श्री नीतीश कुमार ने देखे, कुछ जनता की सेवा करने के भरपूर प्रयास किए गए, जिसमें बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, सड़क निर्माण में, पुलों के निर्माण में, प्राइमरी हेल्थ में, प्राइमरी एजुकेशन में, और ऐसे अवांछनीय तत्वों के लिए विशेष अदालत बना करके उनको सज़ा दिलाने में, वो सब जनता के सामने हैं। और ये पहली बार है कि 10 साल राज्य करने के बाद भी वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। वहाँ बिहार के लोगों की विकास की चाहत और तेज हुई है, इसलिए एक मौका हमें और देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, आप अपनी तैयारी को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव में। देखिए, चुनाव के अवसर पर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। भाजपा को दिल्ली में उनकी सरकार होने का, साधन संपन्न पार्टी होने का, देश के धनाढ्य लोगों के समर्थन का उनको ज़रूर एक एडवांटेज है। लेकिन हमारा गठबंधन ज़मीन के तौर पर बहुत मजबूत गठबंधन है। लोकसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी के लिए हुआ था, ऐसी विधानसभा का चुनाव श्री नीतीश कुमार के लिए है। सर, मुलायम सिंह यादव महागठबंधन के सबसे बड़े नेता थे, वो महागठबंधन से बाहर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कहाँ के सेक्युलर हैं। ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा स्वयं मुलायम सिंह जी ने की थी। वो हमारे बड़े हैं, उन पर मैं टिप्पणी करना अनुचित मानता हूँ। लेकिन गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर हमारे आदर्श रहे हैं। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन था उसमें हम लोगों ने काम किया, लेकिन वो गठबंधन ऐसा नहीं था जैसा वर्तमान नेतृत्व में हुआ है। हमने उनके साथ गठबंधन करके जो विवादित मुद्दे थे उनको अपने एजेंडे से बाहर किया है, और हमें प्रसन्नता है कि हम एनडीए से बाहर आए जब नए नेतृत्व ने उन पुराने सवालों को उठाना और नए तरीके से उनको उठाना और राग अलापना शुरू किया उन मुद्दों का। सुशील मोदी की क्या प्रतिक्रिया इस पर? चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जल्द ही चुनाव होंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेता सुशील मोदी। सुशील जी, ये बताइए कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज इसका ऐलान भी हो जाएगा। बीजेपी किस भूमिका में अपने को देख रही है, क्योंकि आपके 3 नए अलायंस पार्टनर हैं, लगातार सीटों की बात हो रही है, कोई एक आंकड़ा हो सकता है जहां तक बीजेपी जाएगी? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये इस चुनाव के बारे में कि पहली बार बीजेपी वर्सेस ऑल हो रहा है। हम कोई सत्ताधारी दल नहीं है। आज तक जो रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ में गठबंधन बनता है, लेकिन पहली बार बिहार की देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जो मुख्य विपक्षी दल है उसके खिलाफ गठबंधन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि विपक्ष ने यह मान लिया कि बीजेपी सबसे मजबूत है और उसको रोकने के लिए वो एक बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। जहाँ तक सीटों के बारे में सवाल है तो ये राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, ये हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो
बातचीत कर रहा है। आने वाले चुनाव में हम बिहार में विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजनीतिक दल की अपनी अपनी मुनादी है, किस रूप में चुनाव हो रहा है, किस रूप में नया गठबंधन जा रहा है, लेकिन सबसे मजबूत बात इस बार यह है कि ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर भी चस्पा होगी, यानी जो वोटर वोट डालने जाए उसको समझ में आए कि सिर्फ नाम को लेकर भ्रमित ना हो, क्योंकि पिछली बार जो मामला उठा था वो वाकई सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि एक कैंडिडेट के नाम के कई कैंडिडेट उसके बाद उसको हराने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल और निर्दलीय भी खड़े होते रहे। दूसरी बड़ी बात है कि हर जगह पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हर जगह पर होगी। 47 नक्सल इफेक्टेड एरिया को खासतौर से अति संवेदनशील माना गया है, जो कि 29 जिलों में फैले हुए हैं, वहां को लेकर एक खास व्यवस्था है और 6 करोड़ 68 लाख वोटरों को तय करना है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार होगी। संजय जी, सबसे पहले आप ही सवाल, 6 से 5 फेज लाभ किसके हिस्से में जा सकता है? पिछली बार 6 फेज था, इस बार 5 फेज है। 6 और 5 का ज़्यादा मुद्दा नहीं है मुझे, लेकिन लगता है कि जिस तरह से जिन जिलों में चुनाव जिस तरह से फेज वाइज किया गया है, मुझे लगता है उसमें कुछ इसका फ़ायदा बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जो लास्ट फेज है, जो 5वां और अंतिम चरण है, वो देखेंगे वो जो बिहार का जो मुस्लिम बेल्ट है, तब तक पूरा बिहार एक तरह से वोट कर चुका होगा, एक माहौल बन चुका होगा कि शायद किसके पक्ष में ये नतीजे जाने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शायद अगर कुछ माहौल इस तरह का बनता है तो ये जो बड़ी संख्या में जो मुस्लिम मतदाता हैं जो 5वें चरण में वोट देंगे, उनका वोट बहुत निर्णायक होगा। 9 जिले आखिरी में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, खासतौर वो से बहुत, उसमें से 4-5 जिले हैं जो बहुत ज्यादा मुस्लिम, जाहिर तौर पे। 1 मिनट, हिमांशु जरा बात कीजिए, चिराग पासवान का क्या कहना है? हमारे साथ है बातचीत करने के लिए एलजेपी के सांसद चिराग पासवान। चिराग जी, चुनाव तय है, क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तैयारियां हम लोगों की लगातार पिछले 5 वर्षों से जारी हैं। जिन जिन सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, तमाम उन सीटों को हम लोगों ने मजबूती से नर्चर किया है। तमाम हमारे जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो मजबूती से अपनी अपनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। पिछले 10-1 दिन में हम लोगों ने खुद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का आदेश था कि हम लोग परमंडलीय सम्मेलन करें। तो पिछले 10 दिन से लगातार, और आने वाले 10 दिनों में परमंडलीय सम्मेलन भी हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने दरभंगा परमंडल के अंतर्गत आते हुए 3 जिलों को जोड़कर एक सम्मेलन किया था। उसके बाद तिरहुत परमंडल के अंतर्गत आते हुए 6 जिलों को जोड़कर हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था। उसके बाद अभी कल ही हम लोग कोसी में एक बड़ा सम्मेलन करके आए। तो इसी तरीके से एक के बाद एक करके हम लोग लगभग 5 ऐसे परमंडलीय सम्मेलन बड़े बड़े कर चुके हैं, जिसमें अपार जनसलाब, विजुअल्स आपके पास होंगे ही, अपार जनसलाब के साथ लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए लोक जनशक्ति की पार्टी की अपने स्तर पर और एनडीए की अपने स्तर पर, गठबंधन एज अ होल, हम लोग पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए। सर, चुनाव तय है, तारीख भी हो गई है, लेकिन एनडीए का मुख्यमंत्री तय नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है उसमें मुख्यमंत्री भी तय है, सब कुछ तय है वहाँ। देखिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री तय है इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खींचातानी थी, वहाँ पर ज़रूरत थी एक नाम को सहमति लेने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा गठबंधन था जहाँ पे हर नेता और हर दल के नेता उसमें अपने आप को मुख्यमंत्री के ही दावेदार समझते थे। लालू जी क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहे हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता हैं, इसीलिए वो खुद मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, बट उनकी पार्टी के तमाम नेता अपने आप को, उनके परिवार का हर सदस्य अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार समझता था। वहीं उस वक्त मुलायम जी की पार्टी, हर किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। उर्मिलेश जी, बिहार का चुनाव देश पर असर डालेगा, लेकिन उससे पहले बिहार के भीतर के गठबंधन इस चुनाव में उलट गए हैं। बिल्कुल पिछली बार जो था उसके ठीक उलट स्थिति में आकर चीजें खड़ी हो गई हैं। इन परिस्थितियों में आपको क्या लग रहा है कि, 1 मिनट जरा, नीतीश कुमार, चूंकि अब स्क्रीन पे भी नजर आने लगे हैं, नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कह रखा था कि जब ऐलान हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि दरवाजा देखिए फिर बंद हो गया, कुछ देर के लिए वो आए, हमारे तमाम रिपोर्टर वहां पर हैं, तमाम माने पूरे बिहार के रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, कुछ लालू के यादव के घर पर मौजूद हैं, वो कुछ देर बाद कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उर्मिलेश जी, इसका असर बिहार के वोटरों पर किस रूप में पड़ेगा, या नए गठबंधन के जरिए कुछ नया बिहार देख रहा है इस बार?
नहीं, देखिए इस गठबंधन के साथ यह है, खासकर जो जिसको महागठबंधन कहा जा रहा है, हालांकि मैं इसको महागठबंधन नहीं मानता, उसको गठबंधन ही मानता हूं, क्योंकि उसके जो संभावित बहुत सारे एलाइज थे वो उससे छिटक कर बाहर हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे तारिक अनवर साहब, जिनको उस गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था, वो बाहर हैं क्योंकि उनको 3 सीट दी गई। अब वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, जिसको 3+2 मिलाकर 5 सीट दी गई थी। समाजवादी पार्टी जो भले ही बिहार में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, लगभग वो कह चुकी थी कि भाई विलय नहीं हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, तो ये लालू नीतीश का है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, वो प्रतिक्रिया देने के लिए आ रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिर जो चुनाव आयोग ने डेट तय किया है उस पर क्या प्रतिक्रिया है। नहीं, हम स्वागत करते हैं। हम तो एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाए। अब देर जितना हो रही थी तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। अब कल पता चला कि अभी 2-3 दिन और लगेगा, तो हम लोग तो और हाँ लग रहा था कि अब शुरू में तो हल्ला हुआ कि अगस्त में ही हो जाएगा, फिर था कि अगस्त शुरू या सितंबर शुरू में हो जाएगा। अब उसमें भी देर हो रही थी, हर लोग इंतजार कर रहे हैं। फेज में जो हुआ है, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा? ये देखिए, इलेक्शन नहीं, ज्यादा नहीं, यहाँ तो बिहार में 6 फेज में हुआ है चुनाव। तो बिहार में तो ज्यादा फेज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की ये मांग होती है कि भाई सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स दिया जाए। हम लोगों की पार्टी के लोगों ने भी ये मांग की, तो इसलिए वैसी स्थिति में पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता के मद्देनजर उन लोगों को फेजेज बढ़ाने पड़ते हैं और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ना चाहिए। उनको चुनाव कंडक्ट कराना संवैधानिक रूप से उनका दायित्व है। तो जब वो संतुष्ट होते हैं कि वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कितने फेज में करा सकते हैं, तो बिहार में तो परंपरा रही है, कभी 3 फेज में हुआ, फिर 4 फेज में हुआ, फिर 6 फेज में हुआ। इसलिए यहाँ के लिए कोई खास बात नहीं। एक और फेज में हो रहा है तो कोई एक नवरात्र के बीच में बिहार का चुनाव ऐसा चुनाव है, जब नवंबर में चुनाव होना है तो हम लोग तो नवंबर के चुनाव को, यानी जो नवंबर में समापन होता है, अक्टूबर नवंबर में होता है और इस बार तो सितंबर से ही शुरू है। तो इसमें तो आम तौर पर आना ही है, नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, छठ। तो ये पर्व त्योहारों के बीच में और उस समय में तो बिहार में 3 बार से चुनाव हो रहा है। 2005 में भी हुआ, 2010 में भी हुआ और 2015 में भी हो रहा है। इसलिए तो इस समय में पर्व त्योहार तो बीच में आएंगे, अब वो एक अलग बात है। तो इस परिस्थिति में जब इसी बीच में चुनाव होना है तो पर्व त्योहारों के बीच में ही, और इसमें चुनाव आयोग ने सब कुछ सोच समझकर फैसला लिया है, तो इसके बाद उसमें किसी नहीं पूरा समय है भाई, इतना समय इतने दिन से चल रहा है बिहार का चुनाव। अरे जल्दी ही चुनाव खत्म हो जाए, ये आपको कैसे मालूम है? कर दिएगा। ये सब बात बताया जाता है कि सब चीज की घोषणा समय पर होती है। अच्छा, 29 तारीख तक विधानसभा का मतलब कार्यकाल था, आज को ही तो क्या फर्क पड़ता है? पहले ही हो गया। सब बार पहले ही हो जाता है। पिछली बार भी कार्यकाल के पहले हुआ। तो अंतिम समय में जो भी जनता मैंडेट देती है, मैंडेट के अनुरूप सरकार बनाने के लिए कुछ दिन पहले विधानसभा को भंग कर दिया जाता है ताकि नई सरकार। गैप कम है, कैंपेन में थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन यह सब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर है। हम तो देख रहे हैं कि गैप थोड़ा कम। 12 को दिवाली है, तो 12 को दिवाली है, क्या दिवाली मनाएंगे कि दिवाला किसका निकलना है? क्या बात करते हैं, दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे भाई? पूरे देश के लोग दिवाली मनाते हैं, घर घर में दीप जलता है, हम लोग भी दिवाली मनाएंगे। दिवाली और दशहरा तो ये ऐसा। और जीत के प्रति कितने आश्वस्त थे? उसके बारे में हम सोचते भी नहीं, समझ गए ना।
ये सब काम आप लोगों का है। अब आज से आप लोग शुरू कर दीजिएगा। अब शुरू क्या कीजिएगा? काउंट डाउन। नीतीश जी, एक मेरा थोड़ा सा सवाल है। आपका जो महागठबंधन है उसमें से 2 दल पहले ही दूर हो चुके, क्या अभी भी हम लोग जो महागठबंधन का ऐलान जिस दिन किए थे उस दिन 3 ही दल का ऐलान किए थे। ये बाकी तो बीच की अवधि में और लोग जुड़ते तो ठीक है, स्वागत होता, लेकिन नहीं कोई हो जाए मुलायम सिंह और शरद पवार की पार्टी। इस सब के लिए इन सब चीजों के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने बातचीत की, प्रयास किया अपनी तरफ से, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। अगर उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है तो ये उनका निर्णय, उसके लिए हम लोगों को उसके आगे कुछ नहीं करना। हम लोगों ने जनता परिवार की एकता का हम लोगों ने प्रयास किया, सब कुछ किया, वो फलीभूत नहीं हुआ। तो बिहार का चुनाव था और अगर समाजवादी पार्टी ने कोई फैसला लिया है तो अपना फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, और अगर कोई जब फैसला लेता है तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते, इसलिए कि उनकी बात का जवाब क्यों दें, यहाँ कौन सा फैक्टर है। इसलिए अब बहुत बात हाँ मीडिया के लिए जरूर है, आप लोग 24/7 हैं तो आपके लिए मैटर करता है, हम लोगों के लिए मैटर नहीं करता। टू बी वेरी फ्रैंक, 12 तक चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, 12 नवंबर तक, जैसा कि इलेक्शन कमीशन। अरे वो तो टेक्निकल लैंग्वेज है इलेक्शन कमीशन का, जो होना है वो तो 8 को ही हो जाएगा, 12 तक क्या बचता है। अरे वो तो एक तकनीकी बात है, तकनीकी बात है। अरे भाई आप लोग तो पटाखा फोड़िएगा। क्यों? आयोग ने जो घोषणा की है, क्या मानते हैं? दुर्गा पूजा बीच में 2 दिन है। अरे ये तो हम पहले बता चुके हैं, ये तो होता ही है। जिस दौर में ये चुनाव होता है, जिस वक्त में चुनाव होता है, उसमें दुर्गा पूजा, उसके पहले नवरात्रा और इस बीच में मुहर्रम भी है, कई पर्व त्योहार इस बीच में होते हैं। दीपावली है तो दीपावली के पहले ही काउंटिंग भी संपन्न हो जाएगी। छठ अच्छे से मनाएंगे। छठ है जो हम लोगों के लोक आस्था का महापर्व है, वो चुनाव के बाद है। और बाकी ऐसी परिस्थिति तो है ही, सिर्फ एक ही चुनाव में जो अब तक बिहार के सभी राजनीतिक दलों का एक अभ्यास रहा है कई चरणों के चुनाव का, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज के विड्रॉवल के बाद से अगर हम जोड़ते हैं, यानी बिल्कुल एक्चुअल जिसको कहते हैं कैंपेन शुरू होता है, सभाओं का दौर शुरू होता है, उस समय से लेकर के अंतिम फेज के प्रचार की तारीख तक कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि कोई 38 दिन है। पिछले साल 45 दिन था, उस हिसाब से कम है। तो हम लोग तो अभ्यस्त हैं, लेकिन हम लोग तो चाह रहे थे कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव जो सही मायने में चुनाव हुए शुरू हो जाए। अब तक तो जो कुछ भी था वो चुनाव पूर्व का था, तो अब तो बिल्कुल सीधे चुनाव होगा। यहाँ पे आपकी स्थिति मजबूत है? ये हमारी स्थिति 243 पर मजबूत है, चिंता मत करिए। सर आप लोग कम फेज में चाह रहे थे चुनाव, नहीं, हमने कभी नहीं कहा कम फेज ज्यादा फेज, इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। हम लोग तो 5 फेज से भी ज्यादा 6 फेज के अभ्यस्त हैं, इसलिए हम लोगों का तो अभ्यास है। याद है पिछले चुनाव में जिस दिन से कैंपेन शुरू किए पक्का 45 दिन लगा। इस बार इलेक्शन कमीशन ने तो उसमें 7 दिन की कटौती की है, तो इसलिए इस पर इसकी तारीखों के बारे में समय कितना मिला वो सब कोई खास बात नहीं है। जो भी समय है, जितना भी समय मिलता है, उस समय में सारा चुनाव प्रचार होगा। हम लोग तो तैयार बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। आज सवेरे लगा कि नहीं, अब 2:30 बजे की खबर आई तो लगा कि चलो आज हो जाएगा। अरे बता, हम तो इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो आज मॉडल कोड लगाया है, हम तो अपने मन से 6 तारीख से ही इसी मोड में हम चल रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है, हम लोगों का अपना तरीका है। हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं
किसी भी क्षण के लिए हम लोग तैयार थे चुनाव के शुरू होने के, प्रोसेस के शुरू होने के। हो गया, अच्छा है। मुझे तो खुशी हुई है कि कम से कम ऐलान हो गया है। ये का अनाउंसमेंट किया आपने 6% ना, जो हमने नहीं, हमारे यहाँ तो जो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए जो महंगाई भत्ता देती है, उसी के अनुरूप राज्य सरकार का पूर्व से ही ये पॉलिसी डिसीजन है कि हम भी उसी के अनुरूप अपने राज्य के कर्मचारियों को देते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने लिया, ये मॉडल कोड लगने के 1-1.5 घंटा पहले, तो जैसे ही टेलीविजन पर आया हम लोगों ने भी कर दिया कि हम लोग डाल डाल में पात नहीं, इसमें डाल डाल पात पात की बात नहीं भाई। कोई भी काम हो जाना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। सरकार का मतलब क्या है? इमीडिएट काम कीजिए, इंतजार क्या कीजिएगा? इसमें कोई नया पॉलिसी डिसीजन तो लेना नहीं था। पहले से ही जब जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, उसी के अनुरूप हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते रहे। तो ये कोई नई बात नहीं। आज उन्होंने दिन चुना अपने ऐलान का, तो हम लोगों ने तुरंत कह दिया कि राज्य सरकार को भी मिलेगा। वैसे जो राज्य सरकार की जो घोषणा है वो स्वाभाविक है, और वो आप समझिए कि जब केंद्र करती है तो राज्य को भी करना है। हम लोगों का पुराना फैसला, तो उसी के अनुरूप है, कोई नया पॉलिसी डिसीजन नहीं। 6 के बदले आप 7 करते तो हो सकता है। अरे पहले से जो तय वही करते तो थे। जीएसटी पर कहना है सरकार का कि विपक्ष के कारण वो नहीं लागू हो पड़ा था, स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दल इसके लिए जिम्मेदार है। अभी सेशन में कहाँ देरी है? विंटर सेशन तो आने ही वाला है। सेशन नहीं बुलाएंगे वो कह रहे हैं। नहीं, बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन विंटर सेशन तो आने ही वाला है ना, नवंबर महीने में। अब सब घूमेगा। बिहार में ही जो चुनाव है, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, तो लोग भी सेशन बुला के उसमें बैठेंगे और सब यही घूमेंगे। देख नहीं रहे हैं 4 महीना से पैरा ट्रूपर की तरह घूम घाम करके यहाँ आ रहे हैं। आज भी हम अब देखिए अखबार में, कल भी आज भी इनके नेता, इनके मंत्री आते हैं। अब आजकल पैकेज के बारे में क्या बोल रहे थे कि अब मान लिए कि पुराना ही है, तो हमको कह रहे हैं पुराना ही था तो खर्च क्यों नहीं किया? भला बताइए, खर्च उनको करना था, राज्य सरकार को थोड़ी करना था। जो एनएच के प्रोजेक्ट्स हैं वो एनएचएआई को करना था, हम लोगों को थोड़ी करना है। उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो उनको करना था। वित्त मंत्री को तो आपने जवाब दिया है। जी हाँ, वित्त मंत्री जी ने एक छोटा सा पत्र और उसके साथ एनक्लोजर लगा करके वो डॉक्यूमेंट भेजा जो 20 दिन पहले पब्लिक डोमेन में, और उस पर ताबड़तोड़ विज्ञापन भी छप रहा था। तो हमने कहा ही तो 20 दिन पहले से पब्लिक डोमेन में है। हमने अनेक चिट्ठियां लिखी थी, मिले भी थे, और जो बातचीत हुई थी तो बार बार हम लोग कहते थे कि भाई राज्य सरकार को तो कोई सूचना नहीं है, तो एक सूचना के तौर पर चिट्ठी लिख दी थी। जब चिट्ठी लिखे उसको पढ़े और उसका हमने विस्तृत उत्तर भेज दिया। सब चीज रिकॉर्ड पर दुरुस्त रहना चाहिए, इसलिए हमने तत्काल, और मेरे ख्याल से उनका पत्र मेरे पास परसों आया, जैसे ही रखा गया इमीडिएटली हमने उसका उत्तर तैयार कराया, और उसके बाद हमने परसों रात में ही उस पर हस्ताक्षर किया और वो चला गया। कल रिलीज हो गया। सीएम रिलीफ फंड के लिए नेपाल के लिए भी कुछ आपने राज्य सरकार ने दिया है? जी हाँ, हमने जब नेपाल में जो भूकंप आया, हम लोग भी अफेक्टेड थे। उसी समय नेपाल के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था हम लोगों ने किया, राज्य की तरफ से, राज्य के लोगों ने, और अनेक जगह से वहाँ जो भी लोग मदद पहुँचाना चाहते थे उनको फैसिलिटेट भी किया, ये सब किया। लेकिन हमने अपील की थी सब लोगों से तो कि नेपाल के लिए सहायता दीजिए, और मुख्यमंत्री राहत कोष में 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि इकट्ठा हुई नेपाल के लिए। तो वो सब राशि जो इकट्ठा हुई उसको हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में जो अलग नेपाल के लिए खाता शायद खोला गया है, तो उसके में भेज दिया गया है कि जो नेपाल को भेजा जाए, हम लोगों की जो राशि है बिहार की वो भी चली जाए। नीतीश जी, 5 चरण में चुनाव हुआ है, हम लोग थोड़ा लेट हो गया, ये आपको लग रहा है कि ये कितना फायदा आपको इसका हो रहा है? नहीं, इसमें फायदा नुकसान की कोई बात ही नहीं। देखिए, चुनाव आयोग को फेयर और फ्री इलेक्शन कराना है, तो ये उनका दायित्व है। हम लोग तो बिहार में अनेक चरणों में चुनाव के अभ्यस्त हैं। 4 चरण में चुनाव हुए थे, फिर 6 चरण में भी चुनाव हुए हैं।
तो 5 चरण में चुनाव हुआ है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। और बार पिछले चुनाव में तो 45 दिन क्लियर कैंपेन का था, इस बार उस तरह के हिसाब से देखते हैं तो 7 दिन कम है। आलोक जी, कॉन्फिडेंस नीतीश लग रहे हैं या दिख रहे हैं? लग रहे हैं निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि प्रसून जी वो भी जैसे युद्ध के मैदान में होता है, चाहे जो हो उसके लिए तैयार है, और मानसिक रूप से वो तैयार थे, ये खुद भी वो मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो काम उन्होंने किया है उसके बल पर ये आत्मविश्वास होना ठीक भी है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए वो मोदी जी से तो लोकसभा चुनाव से पहले से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। सो मोदी वर्सेस नीतीश हो, यदि आप ये देखें तो राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, क्योंकि खुद मोदी जी ने भी उसे नीतीश वर्सेस मोदी बना रहे हैं। वो चाहते तो किसी राज्य के नेता को भी उनके आगे खड़ा कर सकते थे। तो नीतीश को फ़ायदा नुकसान जो भी हो, लेकिन ये सही है कि वो अब इसी मूड में है, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी अलग भी हुए। जो बात उन्होंने कही, सबसे दिलचस्प बात यही है कि वहाँ पिछली बार भी समाजवादी पार्टी कहीं आप यदि उनको देखेंगे तो 50 वोट या 500 वोट से ज़्यादा कहीं मिले नहीं थे। सबसे ज़्यादा 2005 में मिले थे, 2.54%। उस हिसाब से कहें तो मतलब कोई बहुत कम, या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो कई जगह तो बहुत, तो सारी सीटों पर उनके लड़ने से कोई बड़ा उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। सो मुलायम सिंह को फायदा हो या ना हो, लेकिन नीतीश अपने ढंग से पूरा अस्तित्व का दाव